اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ منہ مبارک۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا آپ کے بال رجل یعنی نرم تھے۔ رجل بفتح راء کسر جیم اور فتح سے بھی آیا ہے۔ اسی طرح سبت و قطت مراد ہے۔ سبت بفتح سین و سکون با کسر با بمانی نرم و لٹکے ہوئے بال، اور قطت بفتح کاؤ کسر تا و فتح تا ایسے بال جو سخت اور پیچیدہ ہوں جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں۔ اردو میں انہیں گنگریالے بال کہا جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ کے منہ مبارک کو جاد بمانی سخت پیچیدہ بتایا گیا ہے، حالانکہ مکمل جاد نہ تھے بلکہ قطت اور جاد یعنی نرم، دراز اور گنگریالے تھے۔ سبت و قطت کے ضد کے معنی میں جاد کا اطلاق جائز نہ ہوگا، اور بعض حدیثوں میں جاد کی نفی کی گئی ہے۔ جاد بہت سخت اور بال کھائے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں، اور صراح میں جاد بمانی مرغول اور قطت بمانی مرغول اور بسط بمانی لٹکے ہوئے بال لکھا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بست تھے، نہ قطت، بلکہ دونوں کے درمیان تھے، جسے رجل کہتے ہیں۔ آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، دوسری روایت میں کانوں تک، اور ایک تیسری روایت کے بموجب کانوں کی لو تک تھے۔ ان کے علاوہ کندھوں کے قریب تک کی روایتیں بھی ہیں۔ ان سب روایتوں میں باہمی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے، یا پھر بال ترشوانے سے پہلے اور بعد ان میں اختصار طول ہوتا رہتا تھا۔ مواہب لدنیہ میں اور اس کے موافق مجمع البحار میں یہ مذکور ہے کہ جب بالوں کے ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو بال لمبے، اور جب ترشواتے تو چھوٹے ہو جاتے تھے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو ترشواتے تھے، منڈواتے نہ تھے، لیکن حلق منڈوانے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ آپ حج و عمرہ کے 2 موقعوں کے سوا بال نہیں منڈواتے تھے، واللہ عالم۔ اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں، اور سر کے بالوں کا چھوڑنا سنت ہے۔ زمانہ قدیم سے عربوں میں یہ عادت تھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ بالوں کی نگہداشت کی جائے، یعنی تیل اور کنگھی وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کثرت سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ جس کسی کے پراگندہ اور ابتر بال دیکھتے تو کراہت سے فرماتے کہ تم میں سے کسی کو وہ نظر آیا ہے؟ یہ اشارہ شیطان کی طرف ہے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ بنے سنورے اور لمبے بالوں والوں سے بھی کراہت فرماتے تھے۔ اعتدال اور درمیانہ روی آپ کو بہت پسند تھی۔ جو کوئی بالوں میں تیل کنگھی نہیں کر سکتا اس کے لیے بالوں کا ترشوانہ بہتر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے سر کے بالوں کو اس وقت سے دشمن جانا ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر بال کے بیچ میں جنابت یعنی ناپاکی ہے، ورنہ ہر اہل زمانہ خصوصاً مشائخ و زہداء عباد میں لوگوں کے ترشوانے کا جو رواج ہوا ہے اس کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ یا تو بالوں میں تیل و کنگھی کی استطاعت نہ رکھتے تھے یا انہیں اس کی فرصت نہ ملتی ہوگی۔ فائدہ: بالوں کے بارے میں سنت وہی ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں صدل فرماتے تھے۔ اہل کتاب بھی صدل کرتے تھے، لیکن مشرکین اپنے بالوں میں فرق کرتے تھے۔ صدل سے مراد بالوں کا پیشانی کی اطراف پر لٹکانا ہے، اور فرق کا مطلب بالوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اس طرح سنوارنا کہ درمیان میں مانگ نکل آئے۔ اسے مفرق یعنی تارک سر کہتے ہیں، جسے مانگ کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امور میں جن کا حکم الہی نہ ہوا اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق فرمانے لگے، یعنی بالوں کے درمیان سے مانگ نکالنے لگے۔
इस बिना पर उलमा फरमाते हैं कि फ़र्क करना सुन्नत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदल से फ़र्क की तरफ रुजू फरमाया, मगर असल बात यह है कि आपको ऐसा हुक्म दिया गया, लिहाजा सदल मनसूख हो गया। इसका भी एहतिमाल है कि फ़र्क को इख्तियार फरमाना इज्तिहाद से है कि इससे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम किबार लबों के गोशों को छोड़ दिया करते थे, इसलिए कि वो मुंह को नहीं ढांपते और न खाने से आलूदा होते हैं। और मुंडाने और ज़ेरे लब जिसे अनफका कहते हैं, उनके बालों के छोड़ने में भी इख्तिलाफ है और अफसल उनका छोड़ना है, लेकिन अनफका के दोनों किनारों के मोड़ने में मुज़ायका नहीं है। और दाढ़ी के बढ़ाने की हद में भी इख्तिलाफ है। मजहब हनफी में 4 उंगल है, जिससे मुराद ये है कि इससे कम ना हो, लेकिन एक रिवायत में यह है कि इससे जायद बालों को काटना वाजिब है। उलमा फरमाते हैं कि अगर उलमा व मशाइख इससे ज्यादा बढ़ाएं तो भी दुरुस्त है, जिसकी दलील ये है कि सही बुखारी में किताबुल लिबास के आखिर में मज़कूर है कि सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में लेकर उससे जायद बाल कता करवा दिया करते थे। हजरत इब्ने उमर जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में लेते और जो उससे जायद बाल होते कता करा देते। हजरत नाफे ने बेरिवायत इब्ने उमर हदीस नकल की है कि लबों के तराशने में मुबालिगा करो और दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दो, इससे तारुज ना करो। जब दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ना मामूर बे है तो फिर हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों माबादुल कब्जा कतरवाते थे? हालांकि वही इस हदीस के रावी हैं। शारहीन इसका ये जवाब देते हैं कि उनका कतरवाना हज व उम्रा के साथ मखसूस है और अजमियों की मानिंद अमल करने की मुमानियत की गई है, और इस बाब में सल्फ की आदत मुख्तलिफ थी। बयान करते हैं कि अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी उनके सीनों को भरती थी। इसी तरह सैयदना उमर फारूक और उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में मनकूल है। और हजरत सैयदना गौसल आजम मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादर रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी तवीलो अरीज थी। आना शरीफ मुँह ज़ेरे नाव साफ करने के बारे में बाज़ हदीसों में आया है मूंढते थे, और बाज़ में आया है कि नूरा इस्तेमाल करते थे। दोनों जानिब की हदीसें ज़ईफ हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमाम तशरीफ ले गए ना उसे देखा। हमाम का ज़ुहूर आपकी रहलत के बाद बिलादे अजम फतह होते वक्त हुआ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमाम के होने की खबर दे दी थी और औरतों को हमाम में जाने की ममानियत कर दी थी, मगर किसी ज़रूरत के तहत, जैसे फसद और इलाज वगैरह हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन बाज़ रिवायतों में जुमेरात के दिन लबें और नाखून हाय मुबारक तरशवाते थे। नाखूनों के काटने की कैफियत में कोई चीज साबित नहीं है, लेकिन इंतिखाबात पाई जाती हैं कि नाखूनों के काटने की इब्तिदा से बाबा यानी अंगुश्ते शहादत से फरमाते और दाहिने हाथ के अंगूठे पर खत्म करते थे। और वो नज्म जो हजरत अली मुर्तजा से मंसूब है उसमें है कि और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक और कंघी कभी जुदा ना फरमाते थे। जब तेल मलते थे तो दाढ़ी शरीफ में कंघी फरमाते और अपने जमाल शरीफ को आईना में मुलाहिजा फरमाते थे। अल हक आईना देखना आप ही को सजावार है, क्योंकि आपका जमाल जहां आ रहे नूर मतलाए नूरे इलाही और मजहरे असरार नामतना ही है। जा आईनाए हुस्न तेरा जुदाई नीस्त गर्ज तजल्ली हुस्न अस्त खुद नमाई नीस्त सल्लल्लाहु अलैहि कदरे हुस्ना हो व जमाले ही। गर्दन शरीफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनेक यानी गर्दन शरीफ के बारे में इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आपकी गर्दन मुबारक चांदी की सफाई में चमकदार और दमिया की मानिंद थी। दमिया बज़म वालो सुकून मीम वो मुजस्सिमा जो हाथी दांत से तराशा गया हो। कज़ाफ़ी फिन निहाया कमूस में है वो मुजस्सिमा जो खाम यानी संगे सफेद से तराशा गया हो। अगरचे आपकी गर्दन मुबारक को सनम या मुजस्समा से तशबीह देने में शान के खिलाफ नजर आता है, लेकिन चूंकि उसकी कारीगरी में खूब आरास्तगी और मुबालिगा किया जाता है, इसलिए उसकी तहसीन में इससे तशबीह दी गई है। कज़ा फिन निहाया और शुमाइल तरमजी के हाशिया में है कि अद्दुमियतुल गज़ाल यानी दमिया गज़ाल यानी हर्न को कहते हैं, और दूसरे हाशिया में दमिया हर्न के बच्चा को कहते हैं, लेकिन लुगत की किताबों में ये मानी नहीं पाए गए। वल्लाहु आलिम। और हदीस में इल्फाज फी सफ़ाइल फिज़्ज़ा
चांदी की सफाई में जाहिर इबारत से गर्दन की सिर्फ मालूम होती है। और मवाहब की दूसरी हदीस में है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि आपकी गर्दन मुबारक सफेद थी, गोया के चांदी से बनाई गई है। मालूम होता है कि आपकी सिफात में से ये सिफ्त अलहदा है। मनकबीन शरीफ, मनकिब बेफता मीम व कसर काफ बेमानी सर, शाना और बाजू के इज्तिमा की जगह जिसे कंधा कहते हैं, और सुराह में मनकब यानी बनो बाजू शाना है। इसके वस्फ में वाक़या हुआ है कि दोनों मनकिब के दरमियान दूरी थी। बाईद को बसीगाए तस्गीर बैद भी पड़ा है और बाज़ों ने इसकी तफसीर अरीजुल सद्र सीना की चौड़ाई से की है। हालांकि अर्ज सद्र एक अलहदा सिफ्त है जो कि मरवी है कि अरीजुल सद्र बाईदा मा बैनल मन का बैन, और ये दोनों सिफ्तें एक दूसरे के साथ लाजिम हैं। चूंकि ये सिफ्त दो उज़व से मुतल्लिक हैं इसलिए जुदा जुदा जिक्र किए गए हैं। सदर शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदर मुबारक यानी सीना शरीफ, सीना कुशादा और महसूस था। ये सूरत ज़ाहरी के हुलिया के बयान में दाखिल है इसलिए इस कदर बयान है, वरना सदर मानवी वो है जिसका जिक्र आयत करीमा में यूं आया है, अलम नशरा लका सदरा का, ए महबूब क्या हमने आपको शराय सदर अता ना फरमाया। ये इस तरफ इशारा है कि आपका मुकाम बहुत आली है क्योंकि उसका तमाम कमाल ज़ाते बाबरकात हज़रत सैयदुस सादात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है। कल्बे अतहर, मवाहब लुदनिया में कल्बे अतहर का भी जिक्र आया है चूंकि दिल बातनी अज़ा से है और यहाँ इसकी ज़ाहिरी सूरत से बहस नहीं, इसलिए गौर फिक्र करना चाहिए। और बाज़ रिवायतों में अजीम मशाशल मुनकबीन वल कतद भी आया है। कतद बेफता काफ व कसरता फूकानिया, और फतह ता वो जगह जहां दोनों मोंडे मिलते हैं, और मशाश वजीम मीम सर की हड्डियों को कहते हैं। बतने अतहर नेज एक रिवायत में है सवा उल बतने व सदरे भी आया है, यानी ना शिकम से बुलंद और ना शिकम सीना से, दोनों बराबर और हमवार थे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में मगाजुल बतन बयान हुआ है जिसकी तफसीर वासिल बतन से की गई है जो कि अरीजुल सदर को लाजिम है, और बाज हजरात मुस्ताविल बतने व सदरे से तफसीर करते हैं। हजरत इब्ने उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके बतन शरीफ की तौसीफ में कहा है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिक में अतहर को देखा है। वो गोया कागज था जिन्हें लपेट कर तह करके एक दूसरे पर रख दिया है। सीना के मुँह मुबारक, हजरत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह सीना मुबारक के मुँह मुबारक की तौसीफ में फरमाते हैं कि ज़ू मुसरबा थे, और हदीस इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु अन्हु में दकीक मुसरबा है। मुसरबा उन बालों को कहते हैं जो सीना के ऊपर से नाफ तक हों। ये बारीक थे लिहाजा उसे खैत, डोरा या शाख से ताबीर करते हैं। और सराह में मुसरबा बेजुम रा, सीना और नाफ के दरमियान बालों को लिखा है। बज़ाहिर मुसरबा का इश्तिकाक सरब है जिसके मानी रास्ता के हैं। सदर शिकम के अलावा कहीं बाल न थे, लिहाजा इसी हदीस में कहा गया है यानी आपके सीना पर दोनों तरफ और शिकम अतहर बजुज इस कदर बालों के जिन्हें सरनबा कहा जाता है खाली थे। और बयान करते हैं कि यानी दोनों कलाइयां, दोनों बाजू, दोनों कंधे, सीना मुबारक का बलाई हिस्सा, दोनों पिंडलियां टखने तक बाल वाले थे। और वो जो आपके वस्फ शरीफ में अजरद यानी बालों से खाली होना वाक़े है वो अशर के मुकाबिल है, यानी अशर उसे कहते हैं जिसके सारे बदन पर बाल हों। बगल शरीफ, आपकी बगल शरीफ सारे बदन मुबारक की मानिंद सफेद थी। तिबरी कहते हैं कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है, वरना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा तमाम लोगों की बगल का रंग जुदा और उसमें स्याही की झलक होती है। इसी तरह करतबी के बयान में इतना ज्यादा है कि आपकी बगल में बाल ही न थे, लेकिन कुछ लोग इसमें कलाम करते हैं कि ये साबित नहीं है। जिल्द की सफेदी से ये लाजिम नहीं आता कि बगल में बाल ही न हो। और बाज हदीसों में नतफा इब्तिया भी आया है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगल के बालों को उखेड़ डाला करते थे। वल्लाहु आलिम। और बाज हदीसों में अफरा इब्तिया वाक़या हुआ है। अफरा गैर काबिज सफेदी को कहते हैं। कज़ा कालल हरवी, और सुराह में आफिर ऐसी सुर्खी और सफेदी
जिसमें सुर्खी की झलक को लिखा है। एक सहाबी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बगलगीर हुए तो आपके बगल शरीफ के पसीने से मुश्क की मानिंद खुशबू महकने लगी। ज़ोहर शरीफ यानी पुश्त। आपकी ज़ोहर शरीफ यानी पुश्त मुबारक ऐसी थी जैसी पिघली हुई चांदी, यानी पाक व साफ और सफेद हमवार। मोहरे नबूवत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। मोहरे नबूवत एक ऐसी उभरी हुई चीज थी जो हमरंगे बदन, मुशाबा जस्ते अतहर और साफो नूरानी थी। इसी को खातिमुन नबूवत या मोहरे नबूवत कहते हैं। खातिम बेकसरता खत्म का फाइल है, जिसके मानी अतमाम रसीदन बे आखिर यानी आखिर में पहुंचकर मुकम्मल करना, और फतह ता से बमानी मोहरो अंगुश्तरी के हैं, यानी वो चीज जो दलील उस पर है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। और आपको इसी नाम के साथ मौसूम करने का सबब ये है कि कुतुबे साबिका में आपकी तारीफ इसी के साथ की गई है। लिहाजा ये वो इलामत है जिससे आप पहचान लिए जाएं कि आप ही वो नबी आखिरुज़्ज़मां हैं जिसकी बशारत दी गई है। मोहरे नबूवत अल्लाह ताला की निशानियों में वो अजीम निशानी है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखसूस फरमाया। हाकिम ने मुस्तदरिक में हजरत वहब बिन मंबा से रिवायत किया कि कोई नबी मबूस न हुआ मगर ये कि उनके दाहिने हाथ में कोई इलामत नबूवत होती, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलामत नबूवत आपके दोनों शानों के दरमियान थी। क्या खूब किसी शायर ने कहा है, नबूवते रातवा आनामाए दरमुश्त के इस ताजीम दारद मोहर बरपुश्त। हजरत शेख इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह शरह मशकात में फरमाते हैं कि आपकी मोहर नबूवत में लिखा हुआ था, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू तवज्जहू ऐसु कुंता फ इन्नका मंसूर। अल्लाह यकता है, कोई उसका शरीक नहीं, आप जिस हाल में भी हैं तवज्जो फरमाइए, बिलाशुबा आप ही फतेह याब हैं। रिवायतों में मरकूम है कि मोहर नबूवत नूरी थी जो चमकती थी। बाज़ रिवायतों में आया है कि आपकी वफात के बाद वो मोहर नबूवत रूपोश हो गई थी, और इसी इलामत से मालूम हुआ कि आपने वफात पाई है, क्योंकि लोगों में शुबा और इख्तिलाफ वाक़या हो गया था, या इसलिए कि ये दलील नबूवत थी, अब इसके असबात की हाजत न रही थी, या ये कि अल्लाह ताला का कोई खास भेद हो जिसे वही खूब जानता है। लेकिन यह गलत है कि बाद अज़ वफात नबूवत बाकी न रही, क्योंकि नबूवत और रसालत मौत के बाद भी बरकरार रहती है। अक्सर रिवायतों में बैनुल कतफीन यानी दोनों शानों के दरमियान वारिद है, यानी मोहर नबूवत बाईं शाना के नागज नरम गोश्त जिसे गसरूफ कहते हैं के पास थी। अल्लामा तूर पुश्ती फरमाते हैं कि दोनों कौलों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि दोनों शानों के दरमियान होने का यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल बीच में है। अगर बाएं शाना के जानब भी है तो बैनुल कतफैन है। यही हाल इस रिवायत का है जिसमें इंदा कातिफ हिल यमना दाई शाना के पास आया है। वल्लाहु आलिम। रावियों ने मोहर नबूवत की सूरत और शक्ल का भी जिक्र किया है और समझाने के लिए तशबीह इस्तेमाल की है। चुनाचे किसी ने उसे बैजा कबूतर से और किसी ने सुर्ख गदूल से, जो आम तौर पर जिस्म पर होता है, तशबीह दी है। सराह में है कि गदा जिसकी जमा गदूद है, गोश्त की सख्त गिरा को कहते हैं। मुराद यह है कि गदा के मुशाबा और सुर्ख से मतलब मायले बेसुर्खी है। लिहाजा ये इस रिवायत के मुनाफी नहीं है जिसमें कहा गया है कि मोहर नबूवत का रंग जिसमें अथर के रंग के हम रंग था। इससे इस कौल का रद्द करना मकसूद था जिसमें है उसका रंग स्याह या सब्ज था, जैसा कि इब्ने हिज्र मक्की ने शराय शुमाइल में कहा है। एक और रिवायत में है कि मोहर नबूवत जराजला की मानिंद था, बमानी तकमा गंडी जो पैरहन के गिरबान में होता है, और हजला बेफतह हा वजीम बमानी वो गोशा जहां दुल्हन को मायूं बिठाया जाता है, इसकी जमा हिजाल है। और बाज कहते हैं कि हजला एक मशहूर परिंदा और जरास उसका अंडा है। ये उस हदीस के मुवाफिक है जिसमें कहा गया कि मोहर नबूवत कबूतर के बैजा की मानिंद थी, लेकिन ज़रलुक्त में बमानी बैजा नहीं आया। बाज कहते हैं कि रिजायत बेतकदीम रा बरजा भी आया है जिसके मानी बैजा के हैं। और तरमजी की एक और हदीस है जिसमें शेराते मुज्तमात यानी मोहर नबूवत गोश्त का एक टुकड़ा था। एक और हदीस में मुश्त
यानी मुट्ठी की मानिंद आया है, जिसमें साकील की मानिंद तिल थे। साकील उन दानों को कहते हैं जो जिल्द के नीचे चने के दाने की मानिंद निकल आते हैं। ये सब कुछ मोहरे नबूवत की ज़ाहरी शक्ल सूरत के बारे में था, लेकिन इसके पीछे खुदा का अजीम असरकार फरमा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस था और जो किसी नबी को हासिल न था। वल्लाहु आलिम। दस्तहाए मुबारक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की तौसीफ में शुमाइल तरमज़ी में कहा गया है कि तवीलुल ज़ंदैन यानी पंजा मुट्ठी बंद दराज था। जिंद बेफताह जा व सुकून नून पंजा को कहते हैं और कामूस में है कि अलजंद मोसिल अलजरा वल कफ व हमा जंदान यानी कलाई और हथेली के मिलने की जगह को जंद कहते हैं और इसका सस्निया जिंदान है। मुट्ठी बंद पंजा की दराजी की तफसील वाज़े नहीं की गई, बावजूद के मुमकिन है कि ये मुट्ठी बंद आपके दस्ते मुबारक में दराज वाक़या हुआ हो। और एक रिवायत में अबलुल ज़राइन और एक रिवायत में अबलुल अस्तीन आया है, यानी दोनों बाजू और कलाइयां फरबा यानी मोटी थीं। और सराह में जरा के मानी रजबुर राहत यानी हाथ की हथेली के हैं। और एक रिवायत बस्तुल कफेन यानी फराग हथेली आया है, मतलब ये कि हथेली भरपूर और मुकम्मल थी। और ये रजबुर राहत की रिवायत के मुवाफिक थी। और सुराह में बस्त बिलकसरे दस्त कुशादा के मानी में है। और किराते अब्दुल्ला में आया करीमा बल यदाहे बस्तान आया है। और एक और रिवायत में सबतुल कफैन नर्म हथेलियां व तकदीम सबक बेरब्बा मानी नर्म आया है, यानी आपके हाथों की हथेलियां नर्म थीं। और मुँह मुबारक की तौसीफ में पहले गुजर चुका है कि सब्त यानी लटके हुए नर्म बाल जो कि जुद के मुकाबिल हों। गोया सबतुल कफैन को इस जगह से लिया है। और सबतुल जिस्म बमानी मर्द खुशकद मुतनासिबुल कामत भी आया है। और कामूस में रजुल सबतुल यदैन मर्द कुशादा हाथों वाला है। सब्त के मानी सखी के हैं। और ये भी कहा कि सखी फराख दस्त होता है। और शुशनुल कफैन भी तफसीर की गई बेफते शीन व सुकून सलसा बमानी बहुत सख्त, जिसकी सख्ती पकड़ने में महसूस हो। अहादीस में कफे दस्त की तौसीफ में सीन व नर्म वारिद हुआ है। चुनाचे तिबरानी ने मस्तूरत बिन शद्दाद से रिवायत किया है कि उसने अपने वालिद से पूछा, उन्होंने कहा मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुंचा और मैंने आपके दस्ते अक़दस को छुआ, मुसाफा किया। आपका दस्ते मुबारक रेशम से ज्यादा नर्म और बर्फ से ज्यादा सर्द था। और बुखारी में हजरत अनस इब्न मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से ज्यादा नर्म हरीर व दीबा को ना पाया। हालांकि हरीर तमाम रेशमी कपड़ों में सबसे ज्यादा नर्म होता है। अपने हाथ में दुरुस्ती और सख्ती किस तरह जमा हो सकती है? हाँ, नरमी फरबही के साथ जमा हो सकती है, जिस तरह के आपका तमाम बदन अक़दस नर्म, लतीफ, फरबा और कवी था। इसी तरह दस्ते मुबारक की हथेलियां भी नर्म और पुरगोश्त थीं। और बाज़ हजरात कहते हैं कि आपके दस्ते मुबारक की नरमी और सख्ती का इन्हिसार वक्त और हालात पर मौकूफ था। चुनाचे आप घर में दस्ते मुबारक से या जिहाद में असलहा इस्तेमाल करते या कारोबार करते तो हथेलियां सख्त होती, जब छोड़ देते तो वह अपनी असली और जबिल्ली नरमी और मुलायमत की हालत में आ जाती। मनकूल है कि जब असमई ने, जो लुग़्त के इमाम है, शशन की खशूनत और सख्ती से तफसीर की तो उनसे कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की तौसीफ में तो नरमी और मुलायमत वारिद है, और आपने चूंकि खशूनत और सख्ती से तफसीर की है तो इसके बाद असमई ने अहद कर लिया कि वो हदीस की तफसीर ही नहीं करेंगे, मगर बाद इस हज़्म एहतियात असमी गायब दर्जा मुनसिफ थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनाब में अदब इंसाफ का बड़ा ख्याल रखते थे। एक मर्तबा लोगों ने हदीस मुबारक लेगाने अला कल्बी, बाज़ वक्त मेरे दिल पर हिजाबात आ जाते हैं कि तफसीर दरियाफ्त की। पूछा कि ये गैन क्या है और इसकी हकीकत क्या है? जवाब में फरमाया कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर के गैन यानी हिजाब के अलावा किसी और शख्स के गैन यानी हिजाब के बारे में पूछो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब जो कुछ मैं जानता हूँ आपके सामने उसके बयान करने की मुझ में ताबो ताकत नहीं। इसकी हकीकत बजुज़ अल्लाहुल ग़य्यूब के कोई नहीं जान सकता। हजरत अबू उबैदा ने शशन की तफसीर गल्ज़ो कसर यानी फरबही और कोताही से की है। काजी अयाज
साहिब शिफा फरमाते हैं कि ये तारीफ मर्दों में महमूद है, ना कि औरतों में। इसकी उन्होंने नफी की है। ये कौल इस रिवायत के बमौजब है जिसमें आया है कि साइलुल अतराफ यानी आज़ा की गिरहें दराज थीं। ये अंगुश्तहाए मुबारक की ताबीर है। मुराद ये कि आपकी उंगलियां लंबी और रवां थीं, और शिफा में तवीलुल असबा लंबी उंगलियां, और एक दूसरी रिवायत में शाइलुल अतराफ बेशीन मोजमा जो कि शोल से मखूज है, जिसके मानी पत्थर खींचना, जमीन से बोझ उठाना और ऊँटने का उसकी ताकतवर बोझ उठाना वारिद हुआ है। और एक रिवायत में शाइनुल अतराफ बेतब्दील लाम बनून, मसलन जबरील को जबरीन आया है और उसे इब्नुल अंबारी ने बयान किया है, और ये सिर्फ कसर कोताही के मुनाफी है। शशन बमानी गलीज यानी फरबा जो बगैर कोताही और सख्ती के है। अगरचे सिहा और कामू से बमानी खशूनत भी मालूम होते हैं, लेकिन आपके दस्ते मुबारक के सिफात, आसार, बरकात और मोजज़ात इतने जायद हैं कि हैते तहरीर में नहीं लाए जा सकते। ताहम मुस्लिम की एक रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रुखसारों पर दस्ते अक़दस फेरा, तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को आपके दस्ते अक़दस से ऐसी ठंडक और खुशबू महसूस हुई जैसे आपने अभी अत्तार की डबिया से अपना हाथ निकाला है। बैहकी और तिबरानी में है कि हज़रत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफिहा करता हूँ तो मेरा हाथ आपके जिस्म अतर से मस होने की वजह से ऐसा मुअत्तर हो जाता है कि मैं तमाम दिन अपने हाथों को सूंघता रहता हूँ और उसमें से मुश्के नाफा से बेहतर खुशबू पाता रहता हूँ। यजीद बिन असवद फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे हाथों में दिया तो मैंने आपका दस्ते अक़दस बर्फ से ज्यादा सर्द और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पाया। और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इजाजत को तशरीफ लाए और अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी पर रखा। फिर आपने मेरे चेहरे, सीना और शिकम पर मसा फरमाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज तक आपके दस्ते अक़दस की ठंडक अपने जिगर में महसूस करता हूँ। लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि खुशबू मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर में मौजूद थी। चुनाचे आपके पसीना मुबारक और बोल की खुशबू का बयान आगे आएगा। अब रहा आपके दस्ते अक़दस से ठंडक का महसूस होना, और ये कि उसका मतलब क्या है, तो ये सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है, क्योंकि आप गर्मो मोतदिल हैं। लिहाजा ये ठंडक वो ठंडक नहीं है जो मिजाजो तबीयत की बरोदतो खुनकी से होती है और सर्द पसीना आने लगता है और इसके छूने को लोग नापसंद करते हैं, बल्कि ये इतदाले मिजाज और अदम गलबाए हरारत पर दलालत करती है, क्योंकि आपके दस्ते अक़दस को छू जाने से लज्जत और राहत मुयस्सर आ जाती थी, जैसा कि हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस और दीगर हदीसों से मालूम होता है। फ़फ़हमु बिल्लाहि तौफीक। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।